السلام علیکم. السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ محمد عبدالرحیم بول رہا ہوں. محمد عبدالحفیظ جی. اور خیریت سے ہو حضرت؟ کیا کریں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ بروچ. تم بچوں کو پڑھانے نہیں بولتے. جب دیکھو جب بچوں کا کیوں ناکا کرتے پڑھانے میں، اسی لیے لوگ بدنام ہے مولوی کے یار بچوں کو پڑھاتے نہیں. بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، تم پڑھاتے ہو میں بات کرتے ہو، یہ سب نہیں کرنا چاہیے. جی جی اپنی تنخواہ کو حلال بنا کے کھاؤ. بچوں کو پڑھا کے کھاؤ گے تو تنخواہ حلال ہوگی. سمجھے؟ جی جی. آج کل ہمارے مسلمانوں کی حالت دیکھ رہا ہوں، ماسٹروں کی یہی حالت. گئے دستخط کر دیا، سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ارے وہ حرام ہو رہی تنخواہ. خالی دستخط کرنے کی تنخواہ لوگے تو حرام ہو جائے گی اللہ جب تک آپ محنت نہیں کرو گے پڑھائی میں. جی جی. ماسٹری میں اگر آپ کو 50,000 گورنمنٹ دے رہی ہے تو گورنمنٹ کے پاس فری کا پیسہ نہیں ہے. حرام کا نہیں ہے کہ تمہارے لیے دے دے کہ خالی دستخط کرو جاؤ اسکول سے چلے جاؤ. پڑھاؤ وہاں پر پورے 5 گھنٹے. ہمارے باپ پرنسپل تھے حضرت اختر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ پوری ٹائم دیتے تھے اسکول میں ایگزام میں نقل نہیں ہونے دیتے تھے. گورنمنٹ کے اصول کے پابند تھے، پھر تنخواہ لیتے تھے. اس لیے آج ہمارے اندر بھی وہی اثر ہے کہ ہم حرام نہیں چاہتے ہم لوگ. ورنہ تو ہمارے خاندان میں بھی ایسے کتنے لوگ ہو گئے ہیں جو ادھر ادھر کی کھا رہے ہیں. کوئی کہیں کی کھا رہا ہے، کوئی کہیں کی کھا رہا ہے. وہ اللہ نے ان کو ہم سے دور کر دیا. جو ہمارے خاندان میں ایسے تھے حرام خور، تو اللہ نے ان کو ہم سے دور کر دیا کہ حرام روزی ہم نہ کھانے پائیں. ہم یہی چاہتے ہیں نا حلال کھائیں. تو ایسے جو ہمارے خاندان میں تھے کچھ ادھر ادھر کے کھانے والے الٹی سیدھی، ان کو اللہ نے ہم سے دور کر دیا. یہ ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں کہیں بھی ادھر ادھر، کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں. وہ تو ہمارے جنازے میں بھی نہ آئے تھے لوگ. دور رہو. وہیں تار گھر والی مسجد میں ہو، کہیں بھی ہو، ادھر ہو یا ادھر ہو، یا جو ہے کہ اشوکا گارڈن میں ہو، یا جو ہے کہ یا وہاں ہو، ادھر ہو ادھر ہو، کہیں بھی. چلو اور سب ٹھیک ہے. نماز پڑھو 5 ٹائم کی، حلال روزی کھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ اور 5 وقت کی نماز پڑھنا پابند بناؤ. لوگوں کو حلال روزی کا پابند بناؤ. اور جو تقریر کا دھندا کرتے اس کو تقریر میں مت بلاؤ. 50,000 روپے لیتا ہے اسے مت بلانا. 5,000 جو چلے جا لے کے اسے بلاؤ. 5,000 روپے میں جو 50,000 لے اسے مت بلانا. ٹھیک ہے نا؟ آج کی بات کبھی بھی 50,000 لینے والے کو مت بلانا. منہ سے مانگ رہے ہیں نا حضرت. منہ سے مانگنے والوں کے منہ پھاڑ دو چالو. بے شرم ہو گیا حضرت، بے شرم ہو گیا. تو نیت تو بدنام کر دیا سالوں نے، برباد کر کے رکھ دیا. بھروچ میں پہلے کتنے سنی تھے سب کے سب. بھروچ میں اب دیکھ رہا ہوں غلبہ کس کا ہے معلوم ہے؟ جی جی. تو یہ کس نے برباد کیا؟ ان لوگوں نے برباد کی. وہ شیر بھروچ بنا تھا، وہ کیا کر رہا تھا؟ شیر بھروچ بن کے خالی شیر. آپ جانتے ہو ان کو؟ میں سرون ضلع جی سے مدھیہ پردیش سے ہوں. آپ جانتے ہو شیر بھروچ کو؟ جانتے ہو آپ؟ ہاں میں نے تقریر سنا تھا ایک بار. وہ ہے نا وہ درگاہ، وہ اسٹیشن کے پاس جو مسجد ہے، اسٹیشن والی مسجد جہاں مزار بنا ہے اندر. جی 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 جی. اس میں وہ آ کے تقریر کر رہا تھا زبردست چیخ کے، بہت خطرناک طریقے سے. جی جی جی. ارے ایسے کوئی تقریر ہوتی ہے چیخ کو؟ نہیں گدھے کی طرح سے آوازیں نکالنا، بھو بھو بھو. نصیحت ہونا چاہیے سر. تقریر میں دل پر اثر کرے پبلک کے. بریلیوں میں تو یہ ہو رہا ہے کہ مقابلے ہو رہے ہیں کون زیادہ چیختا ہے. تو زیادہ چیختا ہے کہ میں زیادہ چیختا ہوں؟ چلا جا. ایک فاروق بمبئی والا فاروق بہت خطرناک چیختا ہے. ہاں ہاں جی جی. قرآن میں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز. گدھے کی 2112. جی جی. وہ بلیا کا چیختا ہے. بلیا بھی کتنا خطرناک بری طرح سے چیختا ہے. اور مفکر اسلام بنا ہوا ہے، مفکر اسلام بنا ہے بلیاوی. غلام رسول بلیاوی صاحب. اس نے تو کہا تھا شبیہ کو کہ استبل ہے جانوروں کے بننے کی جگہ ہے. تب محدث کبھی نے ان پر فتویٰ کیوں نہیں لگایا کفر کا؟ ایک مدرسے کو استبل بتایا بلیاوی نے تو اپنا تھا تو خاموش ہو گئے کہ اپنا ہے چلنے دو. اور پڑھا ہے مفسر اعظم ہند حضرت مولانا قاری ظہیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کو گمراہ قرار دے رہا ہو تم. خالی بیٹھنے سے تھوڑی دیر علماء کونسل میں. اور تمہارا بیٹا جو علاء المصطفیٰ کیا نام تھا، وہ پڑھ کے آیا جامعہ ازہر میں 3 سال بیٹھا دیوبندیوں کے ساتھ. اس پر کیوں فتویٰ نہیں لگایا؟ قرآن میں انہ لیس من اہلک، نوح علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا بے شک تمہارے علم سے نہیں ہے بیٹے کے بارے میں. انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح. تو پھر یہ محدث کبھی اپنے بیٹے کو چھوڑنا ہے اور غلام بلیاوی کو چھوڑنا ہے جس نے استبل بتایا اشرفیہ کو. پھر پٹائی کر دی تھی وہاں کے طالب علموں نے. معلوم کرنا آپ بڑے بڑے عالموں سے. مبارک پور والے بچوں نے اتنا مارا تھا کہ بے ہوش ہو کے گر گئے تھے. کپڑے پھاڑ دیے تھے ان کے بلیاوی کے. کہاں جب سے تو یہ لیڈر بن گئے، مقرر بن گئے، جب سے پٹے وہاں سے.
इसलिए हमारा जो मुकर्रर बन गए जब से बहुत बढ़िया है। आपको इतनी जानकारी कैसे है हजरत सारे उलमाओं की? मैं मुबारकपुर भी तो गया हूँ, हजरत मौलाना जाहिद सलामी साहब है, हजरत मौलाना जाहिद सलामी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पढ़ाते हैं, और वो खतीब मस्जिद के हो, उनको वो क्या नाम है, मुसन्निफ हैं, बड़े मुसन्निफ हैं, और वो महानामा मुबारकपुर चलाते हैं, जो हजरत मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक मिसबाही। जी जी, उनको मैंने कोटा में बुलाया तकरीर करने, बहुत काबिल आलिम है, 10 साल हजरत मौलाना मुबारक हुसैन मिसबाही अशरफिया मुबारकपुर। आपको बहुत तो मैं मुबारकपुर भी तो गया हूँ, आगे मैं बरेली में भी गया हूँ, मैं तो एक बार थोड़ी गया हूँ, बरेली बहुत गया हूँ मैं, माशाअल्लाह हजरत में 10-12 बार गया हूँ कभी, लेकिन कभी इन्होंने साहबा की शान बयान नहीं की, कभी अहले बैत की शान बयान नहीं की, कभी सिद्दीक अकबर की 2-5 मिनट तकरीर नहीं की, कभी हजरत इमाम बाकर की शान में 2 मिनट बयान नहीं किया, कभी इमाम जाफर की शान बयान नहीं की, कभी उस्मान गनी की शान बयान की, यानी 5-5 मिनट 2-2 मिनट भी नहीं सुना। तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो चुका, मैं जान ही बेकार है, रात दिन तोते की तरह रट रखा। अल्लाह हजरत ने ये किताबें लिखी, वो किताबें लिखी, आप एक उर्स में हो जाएंगे 200 इल्म, तो अगले उर्स में 220 इल्म, इसके बाद वाले में 240 इल्म, यानी इल्म की पैदावार होती जा रही है, ऐसे खेती पैदावार होती है, ऐसी पैदावार हो रही। कोई सबसे पहले थे फाजिल बरेलवी को 37 इल्म, फिर हो गए 48 इल्म, फिर हो गए 54 इल्म, फिर हो गए 65 इल्म, फिर हो गए 105 इल्म, अब तो 200 इल्म हो गए। एक आया कहना 220 इल्म। अरे तुम लोगों को वो इल्म मालूम भी है जो इल्म तुम बता रहे हो, कि वैसे गप्पे मार रहा हूँ सुना के उसमें आगे गप्पे मारते डाले बहुत जबरदस्त तरीके। मैं जैसा बोल रहा हूँ हजरत, और अभी इस दौर में किससे बेट होने देखा है हजरत? कोई पीर बताओ ना जिससे बेट हो ही जाए। मुझे होने में गाजी रब्बानी साहब थे, हजरत मौलाना गाजी रब्बानी बांदा वाले, वो काबिल पीर थे और मुफस्सिर कुरान थे। नहीं अभी मुरीद होना हो तो जिंदा बुजुर्ग शख्सियत बरेली में आज भी मौजूद है, उस्ताद उलमा आलिम बामल हजरत मुफ्ती साले साहब रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद है अभी। अरे हैं, मौजूद है, अभी जामिअत उल उलूम पढ़ाते हैं, शेखुल हदीस बोला जी। वो उनका तकवा मालूम है, तकवे का आलम ये है कि एक बार आपने नसीहत कीजिए शागिर्दों को, तो एक शागिर्द ने 3 दिन तक खाना पीना बंद कर दिया, 3 दिन तक। फिर आपने समझाया, जब खाना शुरू किया, ऐसा असर है जबान में कि 3 दिन तक खाना पीना बंद कर दिया। मेरे उस्ताद ने, मैंने हदीस सुनाया उनको। जी जी, मुझे गलती बताई थी, मैं वो हदीस पढ़ रहा था, हदसना यहया इब्न बुकैर क़ाल अख़बरना लैस अन उक़ैल अन इब्न शिहाब अन उर्वा इब्न ज़ुबैर अन आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा अन्नहा क़ालत अव्वलु मा बुदिअ बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल वह्यि रुय्या सालिहतु फ़िन नौम फ़कान ला यरा रुय्या इल्ला जाअत मिस्ल फ़लक़ as-subh सुब्ह हुब्बिबा इलैहिल ख़ला व कान यख़लु बिग़ार हिरा ويتحنث فيه وتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينتهي إلى أهله ثم يرجع إلى خديجة فتستبد المثل حتى جاءه الحق وهو في غار هراء فجاءه الملك. क्या कट गया? हेलो जी, आप कहाँ से फारिग हो? अच्छा, मैं पूरी हदीस पढ़ता तो टाइम लगेगा, लेकिन इतना बता रहा हूँ कि हदीस जब मैंने उनको सुना तो गलती थी मेरी एक जगह यहाँ। जी जी, तो हजरत ने बताया ऐसे है। जी जी, मैं पढ़ रहा था او مخرجهم تو حضرت کا نہیں ابا مخرجهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به الا اودي ان يدركني يومك انشرك نشرا مؤزرا ثم لم ينشب بركة ان توفي وفطر الوحي. قال ابن الشهاب اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري قال ويحدث الفترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقال زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فاحمل الوحي وتابعوا عبد الله بن يوسف وتابعوا هلال بن رباط وقال يونس ومعمر وبادر. میں ایک بار حضرت حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی تھے، سمجھو میں نے وہیں سے یاد کرنا شروع کیا تھا بخاری شریف. حضرت حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری کو جانتے ہیں، وہیں پر میں کتاب لے کے گیا تھا، اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے دعا کیا، اور اسٹارٹنگ میں نے مزار پہ کھڑے ہو کے کیا تھا یاد کرنے کا. لیکن وہ سلسلہ بند ہو گیا یاد کرنے کا، لیکن کافی یاد ہو گئی تھی، جلدی پوری یاد نہیں ہو پائی. لیکن اب وہ کمال نظر لگ گئی ہے، کیا ہو گیا، کیا کہیں میں بد عقیدہ تو نہیں ہو گیا؟ جی جی، حضرت میں ایسا کہہ رہا تھا کہ وہ آپ بابا ریحان کی درگاہ پر آئے ہو بھروچ میں؟ بابا ریحان کی درگاہ ہے کہاں پر؟ بابا ریحان کی درگاہ بھروچ میں.
भरूच में वो एक वो है ना, क्या नाम है, वो बीच बाजार में जो ऊंचाई पे दरगाह, वहाँ भी हम आए थे रमजान में, इसी रमजान में। वो नहीं हजरत, बाबा रेहान रहमतुल्लाह अलैह मदीना हाँ, पाक तो हम भी गए थे, बाबा रेहान रहमतुल्लाह दरगाह पे भी गए, काफी गए। हाँ, जी, जी। इस रमजान में भी गए थे शायद, जी जी जी। मेरे ख्याल से हजरत रमजान में गए, रमजान के बाद ये रमजान में ही गए शायद, ध्यान नहीं है। जी जी। मेरे ख्याल से रमजान में ही गए, मेरे ख्याल से अभी यही रमजान में आए थे ना। जी जी तो एक तो इदरीस बाबा, इदरीस हजरत बाबा इदरीस रहमतुल्लाह जो दरगाह, और हजरत बाबा रेहान, यहाँ तो हम बाबा रेहान रहमतुल्लाह दरगाह पे तो बहुत है, वही मदरसा चलता है ये इनका, हजरत मौलाना शाकिर रज़ी जो मुबल्लिग इस्लाम हैं, बहुत बड़े मुबल्लिग हैं और अच्छी तकरीर करते हैं। इनको भी बरेलियों ने घेर रखा है, इनको भी मशहूर करने दे दिया, जैसे क्या क्या अनशन बख्ते बरेली तो हर किसी को हर कुछ देते हैं। इतने काबिल आदमी है कि उसकी उनकी तकरीर देवबंद में भी हो सकती है, सहारनपुर में भी हो सकती है, नदवा में भी हो सकती है। मौलाना शाकिर साहब की। अरे इतने नपतुल्ला अंदाज मोहताज बरेलियों में ऐसे है ही नहीं, बहुत कम है। एक मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा आज़मी साहब हैं, और ये एक ये ताजुल मुस्लिमीन हजरत मौलाना तस्कीर अहमद साहब हैं, एक हजरत मौलाना कारी शकील अहमद बुलंदशहरी हैं, एक हजरत खतीबुल हिंद हजरत मौलाना मुफ्ती जलील साहब है जो भोजपुर में उस्ताद हैं, बहुत जबरदस्त मुकर्रर हैं, खतीबुल बराहीन है। जी जी मौलाना ऐसे लोगों की तकरीर हो सकती है, ऐसे आलतू फालतू मुकर्रर चीखने चाखने वालों की नहीं होगी। मौलाना तस्कीर अहमद साहब है ना हजरत जी, वो तो बुजुर्ग हस्ती हैं जी। वो उनकी किताबें बहुत अच्छी लिखी है, वो मकबूल हो गई, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान भर में मकबूल हो गई। जी जी जी। और माशाल्लाह उनकी किताबें बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी आपने। अरे वो उनका अगर आलिम साथ देते ना तो ये रस्म रिवाज जो बुरी तरह के रस्म रिवाज हैं, बहुत सारे मीडिया से, लेकिन आलिमों ने साथ नहीं दिया, डर गए कि कहीं हमें वहाबी न कह दें, हमें देवबंदी न कह दें, हमें अहले हदीस न कह दें, हमें नजदी न कह दें। इस डर से आलिमों ने उनका साथ नहीं दिया हजरत मौलाना तस्कीर अहमद साहब, इसलिए थोड़ा उन्होंने पलटी खा ली है। पलटी यूँ खाई कि जब कोई साथ नहीं देगा तो क्या करे, सोचते हैं कि चलो एक तबके में रह के इस्लाह करना तो करते रहो, जैसे भी हो इस्लाह करो। क्या समझ में आई बात? जी जी। और हजरत वो फिरासत ईमानी उनके पास है। हुजूर फरमाते हैं इत्तक़ू फिरासतुल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो, बेशक वो अल्लाह के नूर से दिखता है। मैं ऐसा पूछ रहा था हजरत, मैं पहले देवबंदियों में भी पढ़ता था हजरत। अरे देवबंदी में पढ़ो, बरेलवी में कहीं भी पढ़ो। सुनिए तो हजरत, देवबंदी में कौन सा ऐसा आलिम है जिससे मुरीद हुआ जाए? देवबंद वालों में हाँ एकदम पावरफुल तो अब नहीं रहे ज्यादा, उनमें पहले थे हजरत मौलाना अबरारुल हक हरदोई वाले, हजरत मौलाना शेख अबरारुल हक हरदोई वाले रहमतुल्लाह अलैह, वो एक एक सुन्नत पे अमल करते थे और करवाते थे। वो उनका नाम उससे पहले हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब, मसीहुल उम्मत जिनको कहा जाता है, वो थे। हजरत आप उनका नाम सुनिए, मौलाना यूसुफ लुधियानवी। अरे वो तो उनका सनद ध्यान नहीं है, वो तो इंतकाल हो गई सर। तो उनकी किताब है हजरत आपके मसाइल उनका हल। अरे गजब के आलिम है जी। और उसमें ऐसा लिखा है हजरत कि तबलीगी जमात में जाना हराम है। हाँ हाँ लिखा हुआ, वो तो बहुत से लोगों को इख्तिलाफ है। मुफ्ती जर वली खान साहब जो रहमतुल्लाह अलैह है ना, हजरत मौलाना मुफ्ती जर वली जो बहुत बड़े मुफस्सिर मुहद्दिस थे, उनको भी इख्तिलाफ। और ये मरकज दो जमातें हुई ना, एक मरकज शूरा, एक मरकज इमारत। एक ये बम्बई से जो चल रही है ये इमारत वाली शूरा वाली है, और बम्बई से दिल्ली से जो चल रही है वो वाली है, कौन सी क्या कहते हैं उसको, शूरा वाली। हाँ ना, वो बांग्लादेश में तो बहुत बड़ी बड़ी गुस्ताखियाँ करी है ना, और उनको अमीर में शूरा के अमीर में वो मरकज वाले, वो दिल्ली वाले साथ में। हाँ तो वो तो देवबंद वालों का फतवा है, उलमा देवबंद का। तो उलमा खिलाफ है। हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के लड़के थे, उनकी तकरीर सुनो कितना जबरदस्त उनका लहजा था। अभी उनके पोते मौजूद हैं, हजरत मौलाना खिजर साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जो वक्फ में मुदर्रिस हैं, बहुत बड़े आलिम हैं। हजरत मौलाना खिजर कश्मीरी रहमतुल्लाह अभी जिंदा है। अभी देवबंद वालों में अगर आपको मुरीद होना है तो एक ही पीर है बस, शेख तरीक़त, शेख तसव्वुफ हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब आज़मी इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह, वो अभी हैं, 95 साल की उम्र हो गई है, वो ही है बस। इस लायक बनना तो और लायक तो नहीं है ज्यादा, मुझे लगता नहीं है ज्यादा। और अहले हदीस में अब तो ज्यादातर नालायक रह गए हैं आमतौर से। अहले हदीस एक हाँ वो हैं गुजरात में आते, भरूच में, वो सूरत में शेख तरीक़त उस्ताद उलमा आलिम बामर हजरत मौलाना अहमद खानपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जो दालूम ढाबे में शेखुल हदीस हैं। ये कहा थे, ये ढाबे सूरत से 17 किलोमीटर है, कभी चले जाओ, वो मुरीद भी नहीं करेंगे शायद। अरे नदवा जब आए थे तो उलमा ने मुरीद होने को कहा तो मना कर दिया, कहा कि पहले भी आप आलिम बनो पहले आप। आलिमों को मुरीद नहीं किया कि अभी आप आलिम बनो, वरना ये बरेली वाले जाते तो शोहरत के लिए फौरन मुरीद कर लेते कि मेरे आलिम मुरीद होना है।
लेकिन हजरत मौलाना अहमद खानपुरी साहब बताए जब नदवा गए लखनऊ तो आलिमों ने मुरीद होने को कहा जो नदवा में पढ़ रहे बच्चे, कहा नहीं अभी आपका इल्म का वक्त है, अभी आप पढ़ाई करो। बस आप अंदाजा लगाओ जो आलिमों को मुरीद न करे कितना बड़े पीर होंगे। हजरत मौलाना अहमद खानपुरी आपके सूरत में चले जाओ, लेकिन वो आपको मुरीद नहीं करेंगे, खाली मुलाकात करेंगे। देवबंद के पीरों में यही तो खास बात है, हर एक को मुरीद नहीं करते, बहुत मुश्किल से मुरीद करते हैं, और करते हैं तो फिर उसकी तरबियत करते हैं, वो पक्का नमाजी हो जाता है और सुन्नतों का पाबंद भी होता है। हाँ वो वैसे नहीं रहे हजरत, अभी का दौर बहुत अलग चल रहा है हजरत। अरे नहीं, हजरत अहमद खानपुरी साहब मेरे को खस्मे ख्वाजगान भी कराते हैं, बताया ख्वाजा गईना अजमेरी रहमतुल्लाह जो सिलसिला है उनका चिश्तिया सिलसिला है। हजरत ख्वाजा गईना अजमेरी के मानने वाले हैं, कभी जाकर मुलाकात करना आप उनसे। पहले जैसा अभी माहौल नहीं है ना हजरत ना, अभी क्या है माहौल बहुत अलग है, अभी ये धंधे चल रहे हैं हजरत। अब अल्लामा ताहिर काजी के तो मुरीद हो गए नहीं तुम। अल्लामा ताहिर काजी तो अभी इंतकाल का देखा था मैं उनका वो यूट्यूब पर। चलो खैर वो तो उनसे तो मैं नहीं कहूँगा मुरीद हो जाओ, वो तो इतने शरीयत के पाबंद नहीं है ना। कौन? वो इल्म के मामले में बादशाह हैं, इल्म भारी है उनका। हाँ हाँ हजरत अल्लामा सैयद ताहिर काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के। हाँ वो इल्म में जानिए, एक इल्म में उनके मुकाबले में उनसे भी ज्यादा वो तफसीर में है। शेखुल इस्लाम मुफस्सिर कुरान हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये देवबंद के। वो इल्म हदीस में तफसीर में उनसे ज्यादा। अरे वो तो मक्का शरीफ मदीना शरीफ में जो एकेडमी है ना उलमा की फिक़ह के, वो अमीर से पूरे मक्का शरीफ मदीना शरीफ के उलमा के अमीर उस फिक़ह थे हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत मैं ऐसा मसला पूछ रहा हूँ आपसे कि जो वो मदीना शरीफ में जो नमाज पढ़ते हैं, मक्का शरीफ मदीना शरीफ में, अब वो सीने पे हाथ रख के नमाज पढ़ते हैं हजरत, तो वो अहले हदीस है कि देवबंदी है, बताइए आप देखो मुझे। जो सुन्नत से साबित है बहुत सी चीजें, रफ़ा यदैन और सीने पे हाथ रखना, तो इसलिए चार मसलक हैं कि अल्लाह का मंशा मकसद ये है कि मेरे हबीब की एक एक सुन्नत पे पूरी दुनिया में अमल हो जाए। मशरिक़ वाले दूसरे इमाम को मानेंगे, मगरिब वाले दूसरे, शुमाल वाले दूसरे, तो अल्लाह के रसूल की हर सुन्नत पे अमल हो जाएगा, कोई सुन्नत बाकी नहीं रहेगी। तो अगर सभी एक ही इमाम को मानते हैं तो बहुत सी सुन्नतें बाकी रह जाती। तो ये अल्लाह का मंशा मकसद है चार इमामों को पैदा करने का। जी और सिलसिला चार को चिश्ती सरवंदिया नक्शबंदिया, और चार में खासियत है, चार ही किताबें मशहूर तौर ज़बूर इंजील कुरान, और चार सिमत हैं, मशरिक़ मगरिब शुमाल जनूब, चार सिमत मशहूर है कि नहीं साहब। और चार बड़े बड़े फरिश्ते हज़रत जिब्राइल, हज़रत मिकाईल, हज़रत इसराफील, हज़रत इस्राईल साहब, चार साहबा हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, चार बड़े बड़े साहबा, और बाकी सब साहबा वो अलग हैं। और चार नबी भी हैं, चार नबी भी हैं और रसूल भी हैं। तो वहाँ पर इमाम और अल्लाह ने चार औरतों को एक बैक वक्त रखने की इजाजत दी, अगर इंसाफ करो तो। अल्लाह ने ये भी कहा अगर इंसाफ करो तो चार से निकल करो। तो चार का अदद आपको मिलेगा पूरी दुनिया में, हर जगह आपको मिलेगा। चारों कुल अल्लाह कुल या कासु कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये अहले हदीस को मैं जवाब देता हूँ। हदीस में हुरूफ चार हैं, कुरान में हुरूफ चार हैं, अल्लाह के नाम में हुरूफ चार हैं, मोहम्मद के नाम में हुरूफ चार हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल में हुरूफ चार हैं, मुहद्दिस में हुरूफ चार हैं, मुफस्सिर में हुरूफ चार हैं, मुकर्रिर में हुरूफ चार हैं, मुकर्रिर में हुरूफ चार हैं, मुदर्रिस में हुरूफ चार हैं, इमाम में हुरूफ चार हैं, मुअज्जिन में हुरूफ चार हैं, मस्जिद में हुरूफ चार हैं, मुसल्ली में हुरूफ चार हैं, मुसल्ली में हुरूफ चार हैं, मुसल्ले में हुरूफ चार हैं, मुसल्ली में हुरूफ चार हैं, मुसल्ले में हुरूफ चार हैं। मैं अहले हदीस की घटिया खड़ी कर देता हूँ। अहले हदीस पूरी दुनिया का मुझसे बात नहीं कर सकता इस मसले में, पूरे वर्ल्ड में। तौसीफुर रहमान 10 मिनट में इंशाल्लाह भागेगा, और मेराज रब्बानी इंशाल्लाह 10 मिनट में भागेगा। ये तो खुद बरेलवी था मेराज रब्बानी, मलाउन मरदूद जो आज मलाउन मरदूद हो चुका है। ये अहले हदीस कहते हैं कि साहब कटोरे में इतना बड़ा अना सागर कैसे जाएगा ख्वाजा कई नवाज के। तो हम अहले हदीस का जवाब है कि तू बता, तू आसमान से पैदा हुआ था जमीन से, तू अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ था, तो ये बता क्या तेरी माँ का पेट हाथी के बराबर था? क्या जवाब दिया हजरत आपने, वाह कैसे जवाब देता हूँ अल्लाह की तरफ से। अरे बहुत गजब जवाब आप दिया हजरत, आपने दिल खुश कर दिया, दिल बागबान हो गया। जब तू ये मानता है हजरत ख्वाजा कई नवाज के कटोरे में अना सागर नहीं आ सकता, तू कैसे पैदा हुई? अरे क्या आवाज बोले आपने, बहुत जबरदस्त बोले। और फिर चींटी ने कैसे बात कर ली सुलेमान अलैहिस्सलाम से, जो कुरान में हत्ता जाता है और आबादी नमल भारत नमलती आई है नमल सुनी। तू तो अकल की चलाएगा तो ये भी कहेगा चींटी से बात नहीं कर सकती, वो तो मजबूर है कि कुरान में आया है तो तू मना नहीं कर सकता। चींटी ऐसे कहाँ बात कर रही बत्ती आदमी से, कि अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया कि सुलेमान साहब से बात की थी। भारत नमलती आई है नमल शुरू मसा के नकलाया पवन सुलेमान वो जुनूद हमला से फिरू। एक बात याद रखना, मैं ना अहले हदीस ना देवबंदी ना बरेली, मैं हूँ कट्टर सुन्नी टनाटन अलकट्टर वलकट्टर, में से अजमेरी सुन्नी। ख्वाजा कई नवाज अजमेरी ने इस्लाम फैलाया है,
حضرت شاہ بدیدین قطب المظاہر نے پھیلایا ہے، حضرت امام ربانی مجدد الثانی نے تجدیدی کارنامہ انجام دیا ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حدیث کا علم پھیلایا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے علم تفسیر پھیلایا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے علم تفسیر پھیلایا، پھر باقی اولیاء نے کرامتیں دکھائی، حافظ شاہ جمال رام پوری نے کرامتیں دکھائی، حضرت شیخ علاؤدین صابر کلیری نے کرامتیں دکھائیں، حضرت خواجہ جانا صورت رحمۃ اللہ علیہ نے کرامتیں دکھائیں، حضرت بابا ریحان رحمۃ اللہ علیہ نے کرامتیں دکھائیں، حضرت مولانا شیخ عزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا پیارے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ بابا گور رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عزیز الدین گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے۔ واہ واہ، ارے تو وہ تو بہت لمبی لسٹ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بتائیں گے، ٹھیک ہے صاحب؟ آپ تو بس پڑھائی میں مست رہو، ان چکروں میں مت پڑھو، ٹھیک ہے؟ ایک بات یاد رکھو، قرآن کا حافظ کافر مشرک یہودی عیسائی نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ بات مانو کہ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے وہ مسلمان ہے، بس یہ ایک پہچان ہے۔ عالی درجے کا شیعہ قادیانی قرآن کا حافظ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔